خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کے سرخیوں پر۔ نئی دلی میں وزیر اعظم کے دفتر کی نئی عمارت اور دیگر سرکاری دفتروں پر مشتمل سیوا تیرتھ کا وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں افتتاح۔ سیوا تیرتھ میں شفٹ ہونے کے بعد وزیر اعظم نے کئی اہم فیصلوں کو دی منظوری۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ ختم، اجلاس کے دوسرے مرحلے کی کارروائی 9 مارچ سے ہوگی شروع۔ جموں میں جاری قانون ساز اسمبلی میں آج بھی کئی وزراء نے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے دیے جواب۔ آج فوت ہوئے 2 سابق وزیروں قمر علی آخون اور پیرزادہ غلام احمد شاہ کو ایوان میں خراج عقیدت کیا گیا پیش۔ اور آج منایا جا رہا ہے ریڈیو کا عالمی دن۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تقریبات کا اہتمام۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شام نئی دلی میں سیوا تیرتھ کا افتتاح کیا، جو وزیر اعظم کے دفتر کی نئی عمارت اور دیگر کئی سرکاری دفتروں پر مشتمل ہے۔ سیوا تیرتھ میں منتقل ہونے کے بعد وزیر اعظم نے آج کئی فیصلوں کے تحت پی ایم راحت اسکیم کو منظوری دی، جس کا مقصد لاکھپتی دیدیوں کے ہدف کو دوگنا کر کے اسے 6 کروڑ کر دینا ہے۔ ایگریکلچر انفراسٹرکچر فنڈ کو بھی دوگنا کر کے اسے 2 لاکھ کروڑ روپے تک بڑھایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کسانوں، خواتین، نوجوانوں اور معاشرے کے کمزور لوگوں کے لیے خاص فیصلوں سے جڑے کئی اہم فائلوں پر بھی دستخط کیے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کو ایک وقفے کے لیے اگلے ماہ کی 9 تاریخ تک ملتوی کیا گیا ہے۔ بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ 28 جنوری کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطبے سے شروع ہوا تھا۔ یاد رہے کہ بجٹ اجلاس 2 مرحلوں میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ 9 مارچ سے شروع ہو کر 2 اپریل تک جاری رہے گا۔ لوک سبھا میں آج کارروائی شروع ہونے کے بعد اسے دن میں 12 بجے تک ملتوی کیا گیا اور 12 بجے کے بعد جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو کئی وزراء نے ایوان میں اپنی وزارتوں سے جڑے دستاویزات پیش کیں۔ اس کے بعد ایوان کے پریزائڈنگ آفیسر سندھیا رے نے کارروائی کو ملتوی کیا۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی کو بھی ایک وقفے کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی 9 مارچ کو پھر سے شروع ہوگی۔ وزیر صحت سکینہ اتو نے کہا کہ وادی کشمیر میں بوسیدہ اور غیر محفوظ گوشت اور اس سے بنی اشیاء کی بکری کو لے کر ہیلتھ محکمے نے جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں خصوصی انفورسمنٹ مہمات انجام دی ہیں۔ واج اسمبلی میں لیجسلیٹرز میر سیف اللہ، مبارک گل، فاروق احمد شاہ اور حسنین مسعودی کی طرف سے اس معاملے پر پوچھے گئے مشترکہ سوال کا جواب دے رہی تھیں۔ وزیر موصوفہ نے ایوان کو مطلع کیا کہ مالی سال 2025-26 کے دوران دسمبر 2025 تک 1676 معائنوں کے دوران 2139 کلو گرام گوشت ضبط کیے جانے کے علاوہ 12183 کلو گرام سڑے گوشت کو مختلف ضلعوں میں ضائع کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کاروبار میں ملوث مختلف افراد، تاجروں اور دکانداروں کے خلاف فوڈ سیفٹی قانون کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ اسمبلی میں ہی لیجسلیٹر مظفر اقبال خان کے سوال کے جواب میں سکینہ اتو، جو وزیر تعلیم بھی ہیں، نے جانکاری دی کہ سرکار موجودہ ڈگری کالجوں میں بنیادی ڈھانچے کا درجہ بڑھانے کے علاوہ فیکلٹی کی ضروریات پر توجہ دے رہی ہے۔ دریں قانون ساز اسمبلی نے آج سابق لیجسلیٹر اور وزیر قمر علی آخون، جو آج انتقال کر گئے، کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ سپیکر عبدالرحیم راٹھر نے ایوان کو خبر دینے کے بعد قمر علی آخون کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا اور لوگوں بالخصوص کرگل کے عوام کے لیے ان کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ مرحوم لیڈر کے احترام میں ایوان کے ممبران نے کھڑے ہو کر ان کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ قمر علی آخون کو پہلی مرتبہ 1987 میں جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ کئی محکموں کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ 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 خیبر او پی سی گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ آج ہی ایک اور سابق وزیر پیر غلام احمد شاہ بھی انتقال کر گئے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی نے مرحوم لیڈر کو زبردست خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ان کے احترام میں بھی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर और वजीर आला अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीरों कमर अली आखून और पीरजादा गुलाम अहमद शाह के फात हो जाने पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। एक मुश्तरका बयान में उन्होंने मरहूमीन की जन्नत नशीनी और बुलंद दर्जात के लिए दुआ करते हुए सोगवार कुंभों के साथ दिल्ली ताज़ियत का इजहार किया है। पार्टी के दीगर कई लीडरों ने भी कमर अली आखून और पीरजादा गुलाम अहमद शाह के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। जमीयत हमदाना के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी पीरजादा गुलाम अहमद शाह के फौत होने पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और वहां तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना किया और इस इमारत पर अब तक के काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुशीर ने मुतालिका अफसरान को मज़कूरा प्रोजेक्ट पर मियार बरकरार रखते हुए इसे बर वक्त मुकम्मल करने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से रेडियो के क़याम की याद में हर बरस 13 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। इस साल का मौजू है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है, आवाज़ नहीं। नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। कुलगाम के केलम गांव में भी रेडियो के आलमी दिन की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि 21वीं सदी के इस दौर में अगरचे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दिन ब दिन ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, तो हम रेडियो की अपनी ही एक अहमियत है। कई बुजुर्ग शहरियों ने कहा कि वो पिछले कई दहाइयों से रेडियो प्रोग्राम सुनते आए हैं जिनसे वो महजूज होते रहते हैं। रेडियो कंगन FM 88.4 ने भी आज वसन गांदरबल के रेडियो स्टेशन पर रेडियो वीक मनाया। इस तकरीब पर फौजी अफसरान, तलबा, मकामी बाशिंदे और मौजूद शहरी मौजूद थे। तकरीब के दौरान एक तमद्दुनी और मुसव्विरी प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर रेडियो के अहम रोल को उजागर करते हुए इसे मवासलात का एक मुअस्सर और काबिल रसा जरिया करार दिया। स्किम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेमिना ने आज इंटरनेशनल डे ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की मुनासिबत से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में मारूफ तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद ट्यूमर के इलाज और स्पेशलिटी ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बारे में मुफस्सल जानकारी फराहम करना था। वर्कशॉप में पोस्ट ग्रेजुएट तलबा, तिब्बी पेशेवरों और तिब्बी तालीम से वाबस्ता अफसरान ने शिरकत की। गांव में डिग्री कॉलेज उड़ी बारामूला में आज सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के एहतमाम से दर्दनामा मौजू के तहत एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें बोनियार और उड़ी के दहशतगर्दी से मुतासरा 100 कुंबों ने शिरकत की। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद कस्म पुरसी में मुब्तला उन कुंबों के दर्द कर्ब को उजागर करना और उनकी जायज़ मुश्किलात व मसाइब का इजाला करना था। इस मौके पर बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी से मुतासरा जिन कुंबों की बाज़ाबादकारी और राहत रसानी के लिए इक़दाम किए हैं वो काबिल सताइश हैं। अनंतनाग जिले के कुकरनाग इलाके में मरकजी सरकार के PMMSY के तहत 100 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से ट्राउट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के क़याम की तजवीज़ का प्राइवेट ट्राउट फिश फार्मर्स ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत मार्केटिंग के मौक़ों में इजाफा होगा और मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौक़े पैदा होंगे। बांडीपोरा जिले के जिले वुलर में रवा मौसम के दौरान ऐसे नायाब परिंदों की आमद देखी गई है जिनका मुशाहिदा अभी तक नहीं किया गया था। पेश इस सिलसिले में DD न्यूज़ श्रीनगर की एक खास रिपोर्ट। वुलर झील एशिया का सबसे बड़ा झील होने के साथ एक रामसर साइट भी है। ये झील बेशबहा हयातियाती तनाव और गुनागूनियत के लिए पूरे आलम में मशहूर है। इस साल इस झील में नायाब परिंदों की आमद को रिकॉर्ड किया गया है। इस झील में पहली बार द ब्लैक फेस्ड बंटिंग, टंड्रा बंटिंग्स, यूरेशियन बिटर्न, सिटिंग सेस्टिकोला और टुंड्रा बीन गीस का मुशाहिदा जम्मू व कश्मीर में पहली बार हुआ है। गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान इस झील में चाइनीज़ पॉन्ड हेरॉन, पर्पल हेरॉन और रेडी टर्नस्टोन की अनवा को भी देखा गया है। वुकमा ने तो बहुत कोशिश की है कि जो बर्ड्स हैं यहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दरी असना इस झील में हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाने के लिए महकमा जंगलात, जम्मू व कश्मीर पुलिस, वुकमा और मकामी अंजुमनों की बाहमी इश्तराक से कई एहतियाती इक़दाम उठाए गए हैं।
लेकिन जब से हुक्मा ने ये सारे मामला अपने हाथ में लिए हैं, मुझे लगता है उनकी कोशिशों की वजह से ये नंबर यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। ड्रेजिंग जो हुई है यहाँ पे, इससे इकोलॉजिकली बहुत इम्प्रूव हुई है हमारा वॉलर लेक, और माइग्रेटरी बर्ड जो 20-25 साल से नहीं आते थे यहाँ पे, वो भी आने शुरू हो गए हैं। मुकामी लोगों ने इस झील में वुलर झील एशिया का सबसे बड़ा जिस्मानी और खास अफराद ने आज अपनी देरीना मांगों को लेकर प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एक पुरअमन एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी महकमों और तालीमी इदारों में उनके लिए नशस्तें मखसूस रखी जाएं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की तरफ से बार बार दुहाई देने के बावजूद उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो तरह तरह के मसाइल और मुश्किलात से दुचार हो गए हैं। हेल्थ एम्प्लॉइज फेडरेशन ने एक बयान में मुतल्लिक़ हुकाम से मांग की है कि कम्युनिटी हेल्थ अफसरां और दीगर नीम तिबी अमले के देरीना मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर मंजूर किया जाए। इन मुतालबात में प्रमोशन, मुशाहिरे और दीगर मांगें शामिल हैं। डीडी न्यूज श्रीनगर की खबर के बाद जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा में दरियाए जहलम पर सस्पेंशन ब्रिज पर तामीरी काम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। ये डीडी न्यूज खबर का ही असर है कि लोगों की इस देरीना मांग पर अमल करके मज़कूरा प्रोजेक्ट पर काम का आगाज किया गया है। ये पुल दो तवारीखी बागात पादशाही बाग और दाराशिको बाग को जोड़ता है, जिससे राबिते में बेहतरी आएगी और सियाहत को बढ़ावा मिलेगा। डीडी न्यूज के साथ बात करते हुए R&B खानाबल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सैयद अशफाक अहमद ने कहा कि इस पुल पर तामीरी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये काम मार्च के आखिर तक मुकम्मल किए जाने की तवक्को है। इधर श्रीनगर के हब्बकदल इलाके के बाशिंदों ने तवारीखी हब्बकदल ओल्ड ब्रिज की खस्ताहाली पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस पुराने पुल को सरकार ने पिछले साल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहाल किया था, ताहम इसके एक साल बाद ही ये खस्ताहाली का शिकार हो गया है। लोगों ने मुतालबा किया है कि इस पुल को अपनी पुरानी चालू हालत में बहाल किया जाए ताकि इलाके में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो सकें और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बन सके। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के ऐलान के बाद गुलमर्ग की बर्फ से ढकी ढलानें इन खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मींगा शेरपा ने इन खेलों की तैयारियों के ताल्लुक से तमाम अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 रवां माह की 23 तारीख से 26 तारीख तक मुनाकिद किए जाएंगे। इन विंटर गेम्स में लगभग मुल्क भर के 400 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। टूरिज्म महकमा गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर ताहिर वानी ने जानकारी दी है कि महकमा सियाहत तमाम स्की ढलानों की तैयारी कर रहा है और जरूरी मशीनरी भी तैयारी की हालत में है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर के लिए न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम और मजबूत माइशत जरूरी है, बल्कि सेहतमंद तालीम याफ्ता और जिम्मेदार शहरियों का होना भी लाजमी है। आज नई दिल्ली में बाइख्तियार भारत के लिए कर्मयोग से मुतालिक मुल्कगीर मुहिम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अवाम की सरगर्म शिरकत के बगैर किसी भी कौमी मकसद का हुसूल मुश्किल है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि अखलाक और रूहानियत के साथ एक मुतवाज़िन और मजमूई तरक्की को मरबूत किया जाना चाहिए। महकमे मौसमियात श्रीनगर ने 24 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में किसी भारी बारिश या बर्फबारी को खारिज अज इम्कान करार दिया है। ताहम महकमे ने कहा कि 14 से 16 फरवरी तक चंद बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। आप देखिए कानून साजी में हुई आज की कार्रवाई का खुलासा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।